Hello friends, I am Ruby Unyal, Head Department of Psychology, KTHM College, Nasik. At the very outset, I welcome you all for this session on the celebration of World Mental Health Day. World Mental Health Day is observed on 10th October every year with the overall objective of raising awareness of mental health issues around the world and mobilizing efforts in support of mental health. सामान्य माणसामध्ये जनजागृती वाढवण्याच्या दृष्टीने दरवर्षी 10 ऑक्टोबर रोजी जागतिक मानसिक आरोग्य दिन साजरा केला जातो. Now let us see what are the 5 warning signs of mental illness. The first one is long lasting sadness or irritability. म्हणजेच आपल्याला खूप मोठ्या कालावधीसाठी जर अत्यंत दुःखी वाटत असेल किंवा चिडचिडेपणा वाटत असेल. एक्स्ट्रीमली हाय अँड लो मूड्स म्हणजेच मूड स्विंग्स आहेत का की अत्यंत खुशी किंवा अत्यंत दुःखी वाटणे. एक्सेसिव्ह फिअर, वरी और एन्झायटी, एखाद्या गोष्टीची खूप जास्त भीती किंवा चिंता वाटणे. सोशल विड्रॉवल म्हणजे बरेच वेळेला काय होतं की आपण समाजाच्या इतर घटकांशी दुरावा करून घेतो. बरेच वेळेला असं होतं की आपल्याला लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहायला आवडत नाही किंवा लोकांमध्ये मिंगल व्हायला आवडत नाही. आणि लास्ट आहे ड्रामॅटिक चेंजेस इन ईटिंग और स्लीपिंग हॅबिट्स. जर आपल्या दररोजच्या खाण्यापिण्याच्या आणि झोपण्याच्या सवयीमध्ये काही बदल घडला असेल अचानकपणे तरी सुद्धा आपल्याला हे कळायला पाहिजे की आपलं मानसिक आरोग्य हे धोक्यात आहे. एव्हरी इयर वी सेलिब्रेट दिस डे by organizing various events in the college. This year, due to the corona pandemic, we thought of listening to the views of budding psychologists who, few years back, were the students of psychology just like you. First of all, let's listen to Mugdha Joshi, who has done MA in Industrial Psychology and is presently working with IBPS, that is Institute of Banking Personnel Selection, as a research associate. Namaskar, myself Ms. Mugdha Joshi. On the occasion of World Mental Health Day, I would like to share my views with you all as I am working in the field of psychology. See, we are celebrating this year's Mental Health Day in a very messy period of time. Recently, we have experienced a lockdown which none of us has ever seen before. Everything outside was stuck, shut down, and at the same time, there was a huge chaos going on in the minds of people. Many of us lost their jobs. There is so much anxiety, uncertainty about the future. Everything has become volatile, and on the top of that is the fear of getting the infection. So many of us are facing issues like anxiety, stress, and other psychological problems. Many of us are trying to adjust with the new ways of life, the new normal, and this transition is not easy. So I think is the period of pandemic has highlighted the importance of mental health like never before. As this year's theme is mental health for all, greater investment, greater access. So I think it is important to talk about mental health in all the regions of life. As my area of interest is industrial psychology, I would like to talk about mental health at work. Every aspect of life is going through a transition, and workplace cannot be an exception to this, definitely. So in workplace we are seeing a new trend which is online working or working from home, and we Indians are not that much familiar with this kind of work. This new trend in working has made some things easier while some things a bit complicated, but definitely it is taking a toll on mental health. So I would like to offer a few tips about working from home or working online, so you can be able to protect your mental health while working. These tips can be useful for students as well because the process of teaching and learning has become online as well. First of all, any kind of any mode of working, be it online or offline, it has some advantages and some disadvantages. So looking at the brighter side, you have to count the benefits that online teaching or online working is offering to us. Before you start your work or before you start your study, just recall
What are the benefits that online mode is offering? So set your perspective positively. Secondly, don't overlap personal work and professional work. As we all are working from home, there are many distractions, but we have to set clear boundaries and stick to them. While we are working or studying, we should try to focus rigorously on that only. We should avoid all other distractions. most important time Most important thing that we have to minimize the screen time, because while working online we have to spend huge time on the electronic devices. So for the rest of the day we should keep the electronic devices far away from us. Next important thing is, there is an old saying, sound mind in a sound body. So we have to get exercise, because right now everyone is staying at home, everyone is working on computers and laptops and mobiles. So we are becoming couch potatoes, we are not exercising, we are not doing any physical movement. So take break and use that break while working or studying to take a walk, or get some physical movement, get some exercise, and try to be refreshed and sharpen your eggs for your further work. You have to protect your mental health because it is very important, just like physical health. If you see that someone from your colleagues, friends, or relatives is in need of psychological help, please listen to them. Don't preach, don't advise, just be with them and seek help from mental health professionals. That would be more appropriate. Physical health is very important, but mental health is equally important. That is your shield against all the uncertainties of life, against all the negativity around you. And you have to protect your mental health. You have to protect yourself, because you are special, you are precious. Thank you. That was great. Mugdha, being an industrial psychologist, has highlighted how we must maintain our mental health at the workplace. Now, let us listen to yet another person, a bit senior one, Umesh Girnarkar, who is working as an industrial psychologist in Vardhaman Textile Industries Limited, Bhopal. Let me tell you that few years back, he was a student of MA in Industrial Psychology at Namaskar, NASIC. I am Umesh Girnarkar, working as an industrial psychologist in Vardhaman Textiles Limited in Bhopal, Madhya Pradesh. First of all, I would like to thank Ruby ma'am for giving me this opportunity to talk on this World Mental Health Day. So मैं जानता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कुछ मराठी मीडियम से है, कुछ इंग्लिश मीडियम से है, इसलिए हिंदी लैंग्वेज में आई विल प्रेफर हिंदी लैंग्वेज में बात करूँगा मैं. सो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, 10 अक्टूबर जो है यह वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में. ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज भी इंडिया में मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती. तो ये ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि पूरे विश्व में ये एक दिन मनाएंगे जिस दिन सारे लोग एटलीस्ट एक दिन के लिए इसके बारे में बात करें, ओपन शेयर करें अपनी चीज़ें, जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़े. दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक रीज़न ऑफ दिस डे. सो कल 10 अक्टूबर है और हम सब साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ वो ध्यान रखनी ज़रूरी है कि इस दिन का महत्व क्या है. मेंटल हेल्थ क्या है दोस्तों? मेंटल हेल्थ इज़ नथिंग बट अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग इन विच एवरी इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन पोटेंशियल. हर व्यक्ति अपना पोटेंशियल जान सकता है एंड कैन कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ. और जीवन में जो दिन प्रतिदिन जो स्ट्रेसेस आते हैं हमारे लाइफ में, उसके साथ वो कोप अप कर सके एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली. तो ये सारी चीज़ जो है, जो इंसान नॉर्मल स्ट्रेसेस का सामना कर सकता है, अपने जीवन में चैलेंजेस आते हैं उसके साथ कोप अप कर सकता है, उसी को हम कहेंगे कि मेंटल हेल्थ. मेंटल वेलबींग किसे कहेंगे हम? इट इज़ मोर देन एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस एंड इट इज़ मोर देन फीलिंग हैप्पी. हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टर्म. मेंटल हेल्थ की बात करें, हैप्पीनेस और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए काफ़ी. ये वाई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई मेंटल वेलबींग इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वैल्यूएबल एसेट इन अवर लाइफ.
जैसा कि हम सबके पास अलग अलग एसेट होती है ना, पैसे होते हैं, ज़मीन जायदाद होती है, उसी तरह से मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लाइफ में। नियरली 1 in 2 person आर लाइकली टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ मेंटल इलनेस एट सम टाइम इन देयर लाइफ। 2 में से एक व्यक्ति को उनकी पूरे ज़िंदगी में कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है, मेंटल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। किसी भी हेल्थ कंडीशन की तरह पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इंसान की पूरी ज़िंदगी में असर कर सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। जो व्यक्ति मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करता है उसकी रिलेशनशिप भी उसके लाइफ में अच्छी होती है, नॉट ओनली इन होम बट ऑल्सो इन ऑफिस बट ऑल्सो इन सोसाइटी। अगर इंडिया की बात करें तो एक सर्वे हुआ था, निमांस, आप सब लोग जानते हो, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु। निमांस ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के आधार पर देयर इज ह्यूज बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इंडियन जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है मेंटल हेल्थ को लेकर। एवरी 6th इंडियन नीड्स मेंटल हेल्थ हेल्प बट दे डोंट डिस्कस अबाउट इट विथ एनीवन आउट ऑफ हेजिटेशन। हर छठा आदमी जो है वो परेशान है, उसे ज़रूरत है मेंटल हेल्थ के लिए किसी से हेल्प लेने की, एक्सपर्ट से हेल्प लेने की। लगभग 15 करोड़ लोग जो थे दे वर इन नीड ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट। 15 करोड़ लोगों को ज़रूरत थी उस समय जब सर्वे किया था निमांस ने 2016 में, और उनमें से 15 करोड़ लोगों में से केवल 3 करोड़ लोग जो है वो एक्सपर्ट की सलाह ले रहे थे। वो दे आर सीकिंग केयर, दे आर टेकिंग काउंसलिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। लेकिन बाकी के 12 करोड़ लोग जो है उन्होंने बिल्कुल किसी की सहायता नहीं ली, अंदर ही अंदर रखा उन्होंने। इसी की वजह से आजकल जो हम सब जानते हैं मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एनी इलनेस ऑफ योर बॉडी। फिजिकल जो भी इलनेस होती है, आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट डिसीज बढ़ रहे हैं, कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, इन सब का कारण जो है मेंटल हेल्थ सही नहीं होना या स्ट्रेसेस होना। तो हम सब जानते हैं अनलेस एंड अनटिल हम जब तक मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारी फिजिक, हमारी बॉडी भी हमें साथ नहीं देगी। और अगर बात करें, अपने लिए बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, याद रखें, वी ऑल आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स इज वेरी लो इन इंडिया। रिपोर्ट सजेस्टेड दैट टोटल नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कुड बी बिटवीन 5000 to 7000 ओनली। बाकी लोग एक्सपर्ट की जो नीड है बहुत इनॉर्मस है, हम सब जानते हैं। बहुत कम लोग जो है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो है वो भले डिग्री ले लेंगे, लेकिन डिग्री लेकर वो उस फील्ड में नहीं जाएंगे, वो कुछ और काम कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। आजकल हम देख रहे हैं कि नीड बहुत बढ़ रही है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ का सामना कर रहे हैं, इशूज़ का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को गाइड करें, काउंसलिंग करें। तो हमारे लिए बहुत वास्ट फील्ड है ये। हम सही जगह से गाइडेंस लेके आप लोग सही जगह चुनना चाहिए अपने लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें दोस्तों, हैप्पीनेस इंडेक्स बनती है हर साल पूरे विश्व की, जिसमें 156 कंट्रीज, 156 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। अगर इंडिया की रैंक देखी जाए तो हर साल इंडिया की रैंक कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। 156 देशों में से 2020 में इंडिया स्टैंड कर रहा है 144 पे। 156 देशों में इंडिया 144 पे है। वही 2019 में इंडिया था 140 पे, 2018 में इंडिया था 133 पे, और उससे पहले 122, 119, 118, इस तरह से इंडिया की रैंक नीचे गिरती जा रही है। इसका फर्दर उन्होंने एनालिसिस किया तो ये पता चला कि इंडियंस जो है उनके अंदर निगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये हमारा काम है दोस्तों, निगेटिव इमोशंस को कैसे हम दूर करें लोगों के अंदर से, तो किस तरह लोगों के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करें, हैप्पीनेस क्रिएट करें। क्योंकि लोग जो है वो कंडीशंस डालते हैं अपने आप पे कि मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, रिलेशनशिप मेरी अच्छी होनी चाहिए, मगर ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। अगर हम अपना परसेप्शन सही कर लें तो कई सारी चीज़ें सही हो सकती है। तो एक इमोशनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। जिस तरह से हम आजकल कोरोना काल में फिजिकल हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं,
उसी तरह से होता है इमोशनल हाइजीन। हम सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमें पता होगा इमोशनल हाइजीन क्या है। इट इज नथिंग बट प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव साइकोलॉजिकल हाइजीन। इन अदर वर्ड्स, इट्स कीपिंग योर माइंड क्लियर ऑफ नेगेटिव थॉट्स, मच लाइक वी वुड कीप आवर हैंड्स क्लीन फ्रॉम जर्म्स। जिस तरह हम हाथ धोते हैं, बार बार हमें चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आ रहे। फ्रॉम वेरी यंग एज वी टीच आवर चिल्ड्रन फिजिकल हाइजीन। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हाथ धोए, नहाए, नहाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, हाइजीन रखनी चाहिए। बट वी डोंट टीच देम हाउ टू डील विथ इमोशनल पेन ऑफ रिजेक्शन, फेलियर एंड द लाइक। क्योंकि आजकल हम सब देखते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे कम उम्र में सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। वो क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि वो रिजेक्शन का सामना नहीं कर पाते, फेलियर का सामना नहीं कर पाते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हम साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, वी आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, कि हमें ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल के बच्चों को समझाना कि फेलियर का सामना कैसे करें, रिजेक्शन का सामना कैसे करें, उन्हें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी बहुत नीड है दोस्तों। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सब साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, हम इस फील्ड में डिग्री तो लेनी है, साथ में एक्सपीरियंस भी लेना है और हमें अपनी सर्विस देनी है। वी आर डूइंग सोशल वर्क। तो आजकल इसकी फील्ड काफ़ी बढ़ रही है, आजकल काफ़ी लोग, डिमांड काफ़ी बढ़ गई है साइकोलॉजिस्ट की। इसीलिए डिटेल में स्टडी करें, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ना ले, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करें, केस स्टडीज़ पढ़े। केस स्टडीज़ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी गाइड करती है, हेल्प करती है। और काउंसलिंग केवल थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग की कई सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, यू कैन गो थ्रू इट। आप देखिए किस तरह से साइंटिफिक काउंसलिंग की जाती है। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज साइकोथेरेपीज़। बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, REBT है, CBT है, जो हम काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज़ में। तो हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं दोस्तों, मुझे 12 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते करते। तो अभी मैं टेक्सटाइल फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर भी जो सारे वर्कर्स आते हैं, कई तरह के इश्यूज़ होते हैं उन्हें, कई तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन एक बार बात करने के बाद अगर सही गाइडेंस दे दिया जाए तो वो काफ़ी लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसीलिए मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल का जो दिन है बहुत इम्पोर्टेंट डे है, तो हम सब संकल्प करें, हम सब निश्चय करें कि हम इस फील्ड में अपना अच्छा योगदान देंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Well, thank you, Mugdha and Umesh. Both of them have tried to highlight the importance of mental health in the industrial setting, that is, in an organization. After a few years, all of you would be working in some or the other field, and then you will realize how important it is to maintain a good mental health. Friends, this is just the first part of the video on the celebration of the World Mental Health Day. You need to also watch the part 2 of this video. For now, thank you, and for any queries, kindly feel free to contact me on the given email ID. Thanks a lot.